Hello, everyone. Very good evening to all, and namaste to everyone present here. First of all, I would like to thank you, Sonu ji, for accepting our invitation on behalf of Let Us Talk. And he has given us time from his such a busy schedule, which really matter a lot to Pleasure is us. mine. Thank you so much, Sonu ji. As such, we Pleasure is all know mine. like we have a Sonu Nigam here with us, which is definitely Mhm. a name which does not require any kind of introduction because I know there are many person like including me who have been his great fan since beginning. So yes, but still I would like to say like Sonu ji has been a person with a beautiful mind, beautiful voice, and a very strong personality who has achieved everything on his own, self-made a family man. His positive attitude and talent for self expression is a great inspiration force for all of us here in the world. Thank Thank you you. so much, Sonu ji, for being here with us and Thank taking. you. आपके And आपकी इतनी अच्छी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एक तो मुझे खुद को थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है अभी आप इतनी सारी बातें करेंगे इसके लिए. बिल्कुल नहीं, आपकी नर्वस होंगी. आपकी तो मैंने इतनी तारीफ सुन रखी है. मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा काम करती हैं. So in fact, I am very happy to meet you and listen Thank you so much. to what you speak also. Thank you so much. Just a very small brief about what we do. We at Lotus Talk try to create awareness about mental health, which is a very important issue these days. So we जी. offer therapy sessions that help people to overcome the mental death and help them to rediscover their actual self and the system which actually works for them. So this is a very small initiative run by all of us here. We at Let Us Talk family and about the whole team. So without कितने taking too चांस much की of, sorry. कितने कोइंसिडेंस की बात है कि हमारा आज ही ये सेशन लिखा हुआ था भाग्य में और पूरा देश यही बात कर रहा है. लेटेस्ट टॉक है ना. Yeah, actually, because कल की बात है. when we started this latest talk was not a very common subject. It was a taboo. I'm so glad that abhi people have started talking ki let us talk and let us share. That is a very good thing, and I just want कि ये चीज continue होती रहे future में भी. So to start with a very basic question, Sonuji, how important do you think like a mental health is in a person's life? How important? I think that is the only thing important in anybody's life. That is because mental health तो एक टर्म है. इसका एक सिंपल जो एक इसको अगर हम कॉइन करें एक टर्म तो एक बहुत बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड जिस इंसान का होता है वो सबसे अच्छे हेल्दी मेंटल स्टेट में रहते हैं मेरे हिसाब से. और ये बड़ा ज़रूरी है किसी भी फील्ड में हो. आप चाहे क्रिकेटर हो, चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे आप जर्नलिस्ट हो, चाहे आप गायक हो, चाहे आप डांसर हो. किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रोफेशन में और हर परिस्थिति में अगर आप बैलेंस रहते हैं तो ये आपका सबसे अच्छा आपकी हेल्थ का सूचक है. मेंटल हेल्थ का सूचक है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, that's very true. Mental health is actually very important subject. So as we know, like, the time which we are going through and the situation everyone is right now into. So there are so many thoughts. काफी सारे लोग इस तरीके की उलझनों में फंस गए हैं कि हमारे साथ ये ना हुआ होता तो ऐसा ना हुआ होता. आई एम श्योर कि आपके साथ भी लाइफ में कहीं ना कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपको अभी भी हॉन्ट करता हो in terms of your growth, in terms of your mental being and all. Would you like to share that thing and how did you cope up with that particular phase or that particular zone of yours? बहुत ये तो बहुत लंबा इसका आंसर हो सकता है. मुझे इसको संक्षिप्त में आपको कहना पड़ेगा बिकॉज आई हैव हैड अ वेरी लॉन्ग करियर. आई हैव बीन सिंगिंग ऑन स्टेज फॉर द लास्ट 43 years. So, it's time to retire actually. I'm in post retirement. It should, but I'm still working and I'm still enjoying my work. But and I'm still, not even in my 50s as yet. It, 3.5 more years to be in my 50s still. And so have had a long career, a lot of experiences, a lot of learnings, of course. And when I came to Bombay in 1991, I was just 18 years old. So I literally grew up. I learned the ways. I rectified myself. Because कुछ लोग पैदाइशी इवॉल्व होते हैं, वो एक सिद्ध आत्माएं होते हैं. और कुछ लोगों को सीखना पड़ता है, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है. तो मैं
बचपन से ही दिमाग से काफ़ी गहरा सोचता था। पर ऐसी कई चीज़ें थी जो मैं बाद में सीखा, जैसे गुस्से को कंट्रोल करना। आई थिंक एंगर इज लाइक न्यूक्लियर एनर्जी। आप इसे एटम एटम बम बना लीजिए, या आप उससे एनर्जी बनाइए, इलेक्ट्रिसिटी बनाइए, आप पावर जनरेट कीजिए। तो एंगर ज़रूरी है ज़िंदगी में, और उसको किस तरह यूटिलाइज करना है, तो वो मैंने सीखा, आहिस्ता आहिस्ता सीखा ज़िंदगी में। और ऑफ कोर्स जब मैं नया नया आया था तो मेरे दिमाग में एम्बिशन था, अग्रेशन थी, कुछ पाने का मादा था, कुछ पाने की का जोश था। और आई डिडंट वांट टू फेल, एंड आई वांटेड टू जस्ट because we my father such a such a gifted great genius singer, and my mother also a very good singer and a very great brain in terms of musicalities, but we never really could make it as a family. My father was a very still is a very very self-respected man. He has a lot of self-esteem, which is good, and but he threw all that away when we both were struggling in Bombay to make it in Bombay. So he, you know, kind of did the rounds of the studios and offices with me uh, for his son. He couldn't do that for himself. फिर कैसे भी करते 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 जब हमें मिला, तो ऑब्वियसली खूब मजा आया, और अच्छा लगा कि भाई लोगों ने प्यार करना शुरू कर दिया है, जानना शुरू कर दिया है, इज्जत देनी शुरू कर दिया है, एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया है। और फिर ऐसे कई चीजें आती हैं, कई मोड़ आते हैं जब इंसान समझता है कई चीजों को, कि जैसे फ्रॉम 91 टिल 97 मुझे कोई बहुत अच्छे गाने नहीं मिल रहे थे, जबकि मैं फेमस हो चुका था, सारेगामा टीवी पे आ रहा था, पर गाने नहीं मुझे मिलते थे। मैं सोचता था कि किस क्या होने का वेट कर रहे हैं लोग। आई हैव अ आई हैव अ वॉइस दैट इज बीइंग अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, और मैं घर घर में लोगों के छाया हुआ हूँ, टीवी के माध्यम से लोग बोल रहे हैं क्या गाता है, क्या गाता है, गिफ्टेड है, ये है वो है, पर फिल्मी गाने मुझे नहीं मिलते थे। तो पेशेंस सीखा, जब्त सीखा, कि इंतजार करना सीखा, और इंसान को फिर हम्बल हो जाता है इंसान। फिर ऑफ कोर्स ऐसा कई कई वक्त होते हैं, आप कुछ लोग आपको प्यार करते हैं, कुछ लोग आपसे आपसे थोड़ा प्यार नहीं करते, उनसे डील करना भी आना आना पड़ता है। पहले पहले हर्ट होता है कि यार तेरा मैंने क्या बिगाड़ा जो तू मेरे बारे में इतना खराब लिख रहा है, या तू मेरे बारे में इतना बुरा कर रहा है, कह रहा है, व्हाई आर यू बीइंग सो मीन टू मी। फिर समझ में आता है कि ओहो ये तो होता ही रहेगा, दुनिया में ऐसा होता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। कोई ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है, ऐसी कोई शय नहीं है जिसके हर 100% लोग चाहने वाले हों। हमेशा आपके आपसे आपके साथ कुछ खड़े होंगे, आपके सामने कुछ खड़े होंगे। तो ये आपको उससे डील करना आना पड़ेगा। तो जो साथ में खड़े हैं उनसे भी बहुत ज्यादा ओवरवेल्म नहीं हो, और जो सामने खड़े हैं उनसे भी बहुत ज्यादा ओवरवेल्म मत हो। इंसान को अकेला जीना आना चाहिए, वो मैंने सीखा। अकेले जीने का मादा जिसमें है, जैसे मुझे आप अकेले कमरे में छोड़ दें 4 दिन के लिए, बिना फोन के बिना टीवी के, कुछ भी, मैं अकेला बैठ सकता हूँ अपने आप से। आई एम वेरी हैप्पी विद माई ओन कंपनी। सो ये मैंने सीखा, दोस्तों पे डिपेंड नहीं होना, करियर पे डिपेंड नहीं होना, पैसों पे डिपेंड नहीं होना। अभी भी मतलब जो मैंने टी शर्ट पहन रखी, क्योंकि मैं ये मेरा टाइम होता है वर्कआउट करने का, तो ये मैं इस समय आपका टाइम मैच कर लिया, बिकॉज आई आफ्टर दिस आई एम गोना वर्कआउट। ये जो टी शर्ट है ये भी मेरी कल से 3-4 साल पुरानी होगी मेरी। और यहाँ पे दुबई में मेरे पास गिनती 4 बनियान बनियान है, और 2 वर्कआउट शॉर्ट्स हैं बस, एंड आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दैट। मुझे ये नहीं लगता अरे यार ये क्या है, मैं तब से एक ही ब्लू शॉर्ट्स पहन के वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज हम उसको धो रहे हैं, गंदा नहीं, हाइजीन पसंद इंसान हूँ। सो अपनी, जैसे मैं वॉचेस नहीं पहनता, मुझे घड़ियों का शौक नहीं है। मुझे कार का शौक था पहले, अब कारों का भी शौक नहीं है। मुझे घूमने का शौक है, क्योंकि मुझे उस लगता है कि मैं दुनिया को, ये मेरी दुनिया है, ये मेरा जहां है, ये मेरा कॉस्मोस है, ये मेरा ब्रह्मांड है। मुझे मजा आता है दुनिया देखने में, पहाड़ों में जाने में। तो मुझे वो शौक है। बाकी मुझे कपड़ों का शौक नहीं है, मुझे ब्रांड्स का शौक नहीं है, मुझे कुछ शौक नहीं है। और ये मैंने इस इस पूरे अंतराल में सीखा, एंड आई थिंक ऑल ऑफ दीज have made my life much more simpler, and मुझे अच्छा लगता है। I'm a much happier person from when I came to Bombay 28 29 years back उससे। और मुझे खुश हो गए भी, 15-20 साल हो गए मुझे, 90 2003 2004 से, हाँ 17 साल मुझे हो गए। मैं तब से
अच्छे माइंडसेट में गुजर रहा हूँ. I've been in a very happy state of mind. That's such a beautiful advice कि materialistic चीजें जो है they can actually give you happiness for a certain period of time. But आपकी जो खुद की internal happiness है, it's created by your own self. That is a very valid point as well. I think अभी के सिचुएशन में ये चीज तो हम सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा मैटर भी करती कि how happy you can be being with your own self. That is a very Yeah. beautiful advice, Sonu ji. Thank you so much for that. एडवाइस नहीं है, मैं तो सिर्फ शेयर कर रहा हूँ. मैं नहीं No, समझता कि मैं किसी को एडवाइस दे सकता हूँ. मैं अपनी जिंदगी शेयर कर रहा हूँ आपसे, बट आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. That is a very huge thing. Thank you for sharing your experience. Okay, I'll not use the word advice, but या thank you वही for मुझे लगता sharing है. your experience.